Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. My name is Ekta and I'm a cabin crew. So आज की वीडियो में क्या करेंगे हम? So today's video is not on a particular topic. Today's video is just a chit chat kind of, क्योंकि I have done recently this flight. उसमें ढेर सारी चीजें हुई है which I want to share. So it will be a story time kind of a video. So just let's begin. Today I was not in a mood of doing any hairstyle, and also because we all are at home only mostly these days, so I just thought why not oil my hair. So ignore if it's looking weird, but it's very comfortable. Okay, so what happened is we were doing this 3 sectors, Lucknow somewhere, then from there somewhere, and then the 3rd sector was we were landing back in Bombay. So in the 1st sector, let me talk about the 1st sector first. So what happened is कि अच्छा boarding everything जो procedure है, all that happened. So boarding के time पे ही, and let me tell you, it was a full flight, ठीक है. So boarding के time पे there is this lady, she comes up to me and she's like, ma'am, there are these guys sitting over there. I don't want to sit there and all that. मुझे वहाँ पे नहीं बैठना है, मुझे कोई और सीट दे दो. तो I politely explained her कि this is not in our hands, and also the flight is full, so I cannot do anything. But still the boarding was not yet over, so I just told her that let it finish, everything settles, and then I will search a seat for you. So she's just standing over there. 5-6 minutes हो गया, passengers are coming, going, settling down and all, सब कुछ हो रहा है. The ground staff is coming, doing whatever they are supposed to, checks लेना, ये वो सब कुछ चल रहा है like काम. And she's just standing over there. I'm like, what happened? There's something wrong. तो फिर मैं गई and then I'm like, what happened? कहते नहीं, आप जब तक सीट नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे बैठ जाऊँ इधर बैठना. And she had a window seat, and then उसके बाजू में like this is A, B, C, then the aisle, then D, E, F. So D, E, F पे there was a guy sitting on E, the middle seat, and there's this lady sitting on window seat. And Delta was like खाली था, हाँ, I think it was vacant. So she's like, can I sit here? मैंने बोला कि I really don't know, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ boarding, I cannot assure you. अगर कोई आएगा and then आपको उठा देगा तो what will I do? It will come on me, right? So उनको मैंने बोला. Then she literally मेरे मुंह पे like बहुत इरिटेट हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी. शी टोल्ड मी ट्वाइस, राइट. आई ऑल्सो गिव दैट सेम आंसर टू हर. आई टोल्ड कि वेट, बोर्डिंग कंप्लीटेड, हमारी जो लीड होती है वो अनाउंस करती है, जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आई कैन सर्च अ सीट फॉर यू, नो प्रॉब्लम. तो ये सब हो गया. एंड देन बहुत ही वियर्ड सा ऐसा होता है ना, हम चिढ़ के ऐसे कभी इरिटेट हो जाते, ऐसा करके मुँह बना के हम चल जाते. शी मेड इट ऑन माई फेस एंड देन शी सैड. चलो ठीक है, वो हो गया. वी टुक ऑफ एंड ऑल दैट. टेक ऑफ के बाद ऑल्सो शी टोल्ड मी, मैंने बोला कि दिस सीट इज़ वेकेंट. देयर वाज वन सीट वेकेंट, नॉट दैट सीट जो पहले वेकेंट था, द डेल्टा 1. दूसरा एक सीट था वेकेंट था, बट दैट वाज अ मिडिल सीट. मैंने बोला खाली है, इफ़ यू वांट टू सिट यू कैन सिट ओवर देयर. देन शी टोल्ड नो, रहने दो, फिर मैं यहीं पे बैठती बिकॉज माइन इज़ अ विंडो सीट. आई वाज लाइक या ओके फाइन. देन आफ्टर सम टाइम शी अगेन केम टू मी, शी इज़ लाइक आई एम फीलिंग वेरी प्यूकिश, ये वो, डू हैव समथिंग टू ईट, ये वो. मैंने बोला कि कोविड के सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए वी हैव लाइक टेम्परेरी स्टॉप्ड आवर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, सो दैट्स नथिंग दैट आई कैन ऑफर यू. यू वांट सम वाटर दैट आई कैन ऑफर यू. तो ये हो गया. देन शी इज़ लाइक अच्छा नो. फिर मैंने उनको पूछा शुड आई गिव यू सम एयर सिकनेस बैग्स, एक्स्ट्रा एयर सिकनेस बैग्स. तो शी इज़ लाइक नो नो, मैं देखती हूँ, आई स्लीप, आई एम फाइन. देन शी वेंट. फिर लैंड हो रहे थे. बिफोर लैंडिंग ऑल्सो सिक्योरेंस के टाइम शी वॉज लाइक फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. लैंड हुए जैसे एयरक्राफ्ट टच हुआ, उधर ना एक मतलब चिल्लाना काइंड ऑफ, सब नहीं चिल्ला रहे थे. शी वॉज ओनली हु शाउटिंग, बट देन ऐसा हो गया था. देन शी जस्ट केम एंड शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स आफ्ट. तो इधर ना R2 का जंप सीट होता है एंड देन कॉर्नर में L2 का जंप सीट होता है. सो आई वॉज L2 दैट टाइम. तो मैं तो देख नहीं पा रही थी, बट मैं R2 आई कुड हियर दैट शी वॉज शाउटिंग द कमांड्स दैट गो बैक टू सीट्स एंड ऑल दैट, बिकॉज we were not yet, the aircraft was not yet parked, seatbelt signs were on, aircraft was moving basically. So कुछ होता तो she could have got hurt, but she just came. अगर वो ऐसा भी इशारा करती ना तो उनको समझ में आता that okay she is feeling pukish, तो कुछ करते, you know, air sickness बैग निकालते या कुछ करते. But she just was coming running after me, and then मेरी R2 she was sitting over there. अगर वो वहाँ से तभी नहीं रुकती तो वो लेडी प्यूक कर देती उन पर, बट ऐसा नहीं हुआ. वी फटाक से तभी सीट बेल्ट साइन ऑफ हो गया एंड वी जस्ट एकदम क्विकली, यू नो, होता है ना एकदम फटाफट उठे हम लोग. एंड देन वॉशरूम का लैब का दरवाज़ा भी ओपन, एंड देन शी वेंट इनसाइड एंड देन शी प्यूक्ड एंड ऑल दैट. ये सब हो गया. देन वी गेव हर वाटर, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह वो सब दिया हमने. देन शी वॉज फाइन.
गॉड थोड़ा सा हुआ था, लाइक फर्स्ट सेक्टर ही था, लाइक वेरी अर्ली मॉर्निंग था, 4 या 5 बजे का हमारा फ्लाइट था आई गेस। अर्ली मॉर्निंग ये देख लिया, देन वी वर लाइक ओ गॉड क्यों, बट देन ठीक है वी वर फाइन। बट कभी कभी हो जाता है कि फ्लाइट्स में या ऐसी नॉर्मल लाइफ में भी आप किसी के लिए कुछ करते हो, स्पेशली अननोन इंसान होते हुए किसी के लिए कुछ करते हो, एंड देन द पर्सन डजंट इवन केयर, नो थैंक यू नथिंग, लाइक बेसिक थिंग्स होते हैं ना ये सब, तो ऐसा लगता है कि एनीवेज तो ऐसा थोड़ा लगता है कभी कभी। सो दैट वाज दैट। नाउ सेकंड सेक्टर, वी वर डूइंग 3 सेक्टर्स नो, तो ये हो गया फर्स्ट सेक्टर का कांड, ठीक है ना। ये हो गया क्लीनर्स आए, लैंड हुआ एयरक्राफ्ट, देन क्लीनिंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, सैनिटाइज एंड ऑल दैट, एवरीथिंग वाज डन। ना सेकंड सेक्टर बोर्डिंग हो गया। उसके बाद बिफोर टेक ऑफ अगेन हम सिक्योरिटीज करते, चेक करते कि सबने सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं, ट्रे टेबल्स आर क्लोज्ड, विंडो शेड्स आर अप, ये सब कुछ हम चेक करते हैं, एंड देन सिक्योरेंस चेक करते हैं, एंड देन वी मूव। सो वी वर डूइंग दिस सिक्योरेंस ओनली। सो my lead she was coming from the forward to the up, then again she goes in the forward, ऐसे करते usually leads, and then बाकी जो crew है वो अपने अपने respective zones में करते हैं securance. So what happened, she was coming towards the aft, तो 24th row पे या कौन से row पे there was this lady sitting aisle seat पे, she removed her face shield, mask and all everything, ठीक है, gloves वगैरह everything she removed। जबकि बार बार announcements होते हैं कि यू हैव टू कीप वेयरिंग दोज थिंग्स, अभी जिस सिचुएशन में है हम लोग उसके हिसाब से बेसिकली यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस जो भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट, WHO एंड एयरलाइंस की तरफ से जो भी है। तो कुछ नहीं, शी वॉज नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दोज, सब कुछ मास्क वगैरह निकाल के उन्होंने रख दिया था सीट बैक पॉकेट में, ठीक है। तो माई लीड शी टोल्ड हर वंस कि आप पहन लो इसे पूरे फ्लाइट में, यू हैव टू वेयर इट, ठीक है। वंस शी टोल्ड, देन मैं जब गई सिक्योरेंस के लिए अगेन आई टोल्ड, दिस वॉज बिफोर टेक ऑफ, ओके। Then again while my lead was going, after the forward में she was going, then she told, तो 3 बार हो गया before take off. Now throughout the flight भी उनके बाजू में जो passengers बैठे थे, they were also like disgusted, uncomfortable. After में passenger आया तो they just told कि again that lady is not wearing mask and all that man, ये वो, तो I was like okay, so मैं गई and then I told her again, she didn't listen. Like ऐसा नहीं कि वो ignore कर दे रही है या जो भी है, she was wearing, फिर हम लोग एक स्टेप लेते हैं वहाँ से जाने चाहते हैं, देन शी यूज टू रिमूव इट अगेन, तो मतलब हम लोग के सामने शी वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू वेयर इट, बट शी जस्ट केप्ट ऑन रिमूविंग इट एवरी टाइम वी वेंट। सो देन ये 4th टाइम हो गया, देन माई लीड शी केम व्हेन शी वॉज कमिंग टू द आफ, तो ये ऑलरेडी हो गया था 10 से 12 बार हमने उनको ऑलरेडी बोल चुका है, ठीक है, वो सुनी नहीं रही थी। देन लैंडिंग के बाद अगैन वी आर ऑन द एक्टिव रनवे, पैसेंजर्स आ गए, एंड देन देयर वाज दिस पैसेंजर शाउटिंग कि इन्होंने फिर से निकाल दिया है ये वो। देन हमारा जो होता है सीट बेल्ट साइन ऑफ होते, देन वी डिसआर्म फ्लाइट, जो सब जो भी होता है वो हमने किया। देन आपसे आई वेंट, आई टोल्ड हर, आई रिक्वेस्टेड हर अगैन, एक्सप्लेन हर एवरीथिंग वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उनको मैंने बताया, समझाया बेसिकली कि जो ये गाइडलाइंस है यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके आसपास भी पैसेंजर्स है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर सेफ्टी, दिस इज़ आपके आसपास जो पैसेंजर्स बैठे फॉर देयर सेफ्टी ऑल्सो। सो जब मैंने ये सब चीज़ें बोला तो आजू बाजू के पैसेंजर्स वर ऑल्सो लाइक ऐसे घूर रहे थे उनको। सो देन एयरक्राफ्ट के बाहर निकलते तक शी वॉज वेयरिंग, अभी उसके बाहर निकलने के बाद ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट शी डिड, बट तब तक एटलीस्ट शी वॉज वेयरिंग, दैट वाज द लॉन्गेस्ट शी वॉज वेयरिंग द मास्क एंड फेस शील्ड। 5-10 मिनट तक के लिए कंटिन्यूस उन्होंने पहने रखा था, वरना पूरे फ्लाइट में लाइक वी वर so tired of telling her again and again, but she was just not ready to listen to us. We were really pissed off, but ठीक है, सेकेंड सेक्टर का this was the story about second sector. Now we move on to third sector. Third sector में as such कुछ हुआ नहीं था, but the thing is कि अभी फर्स्ट और सेकेंड सेक्टर में we were like already कुछ ना कुछ ड्रामा was there, so थोड़ा सा ना दिमाग ऑलरेडी थोड़ा irritated kind of हो गया था, pissed kind of. And थर्ड सेक्टर में we were supposed to land in Bombay, तो कैप्टन ने हमको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इट्स गोना बी टर्बुलेंट, लेकिन थोड़ा टर्बुलेंट होने वाला था हमको लगा, बट वो बहुत काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट था। एंड इन द मिडल ऑफ द फ्लाइट आई वॉज इन द रेस्टरूम इन द लैब, सो व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट लाइक वॉशिंग माई हैंड्स एंड ऑल दैट, आई वाज इन द लैब, हाथ पे पूरा लगा हुआ है सोप एंड ऑल दैट। देन सडनली बहुत ज़ोर से टर्बुलेंस होने लगा, आई वॉज इन द लैब, एंड लैब में मैं ऐसे हो रही थी, सो यू कैन इमेजिन कितना ज़ोर से हो रहा था टर्बुलेंस। सो हाँ, सो अब मैंने तो हाथ में सोप लगाया हुआ है ना, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स,
तो आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, इन द मिडल ऑफ द थिंग आई वॉज कि मैं अभी ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती, तो आई वॉज जस्ट फटाफट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू वॉश इट एंड देन मैं निकलती। तो मैं वॉश कर ही रही थी, लाइक स्टार्ट ही किया था मैंने वॉश करना। सो कैप्टन टोल्ड टू सीट बेल्ट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अभी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्रू को भी अपने सीट्स पे जाना होगा एंड सीट बेल्ट लगाना होगा। एंड देन आफ्टर आई बीइंग द L2 आई हैव टू गिव द चेक टू माई लीड इन द फॉरवर्ड दैट वी आर सिक्योर, आफ्टर सिक्योर, एंड देन शी विल पास ऑन द चेक टू द कैप्टन। तो अब लीड वॉज वेटिंग फॉर मी टू गिव द चेक। माई R2 बैन करे, मैंने बोला यार 2 मिनट रुक जाओ। आई वॉज लाइक कौन सी घड़ी में आज मैं उठी सुबह, कौन सी घड़ी में आगे फ्लाइट करने के लिए। ऐसा आज तक मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि मतलब मैं लैब में हूँ एंड देन कैप्टन इज़ लाइक टू सीट बेल्ट रिक्वायर्ड, बट देन ठीक है, हो जाता है कभी कभी। आई फील कि हाँ चलो कोई ना। देन फटाफट मैंने जैसे तैसे वो बस किया, आई ग्रैब सम टिश्यूज एंड फटाफट बाहर आई, जंप सीट पकड़ा एंड सीट बेल्ट लगा के फटाफट हमने चेक दिया एंड देन वो हो गया। बट इट वॉज लाइक सो टर्बुलेंट। लैंड होने के बाद तक आई वॉज लाइक फीलिंग सो प्यूकिश। घर पहुँचने के बाद वंस आई टुक शावर एंड ऑल दैट, तब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना टर्बुलेंट होता है कि मतलब पूरा टाइम, अगर फर्स्ट सेक्टर में हो जाता ना टर्बुलेंट, ऐसा टर्बुलेंस अगर फर्स्ट सेक्टर में हो जाता तो फिर थर्ड सेक्टर तक तो मेरे को पक्का 2 बार तो उल्टी हो ही जाती, बिकॉज नहीं खाओ ना आप तो भी गैस की वजह से यू फील प्यूकिश एंड हो जाती है वोमिटिंग, एंड अगर खा लो तो भी अगर टर्बुलेंट रहता तो उसकी वजह से एवरीथिंग यू नो जस्ट कम्स आउट। सो वैसा होता है और मुझे ये फीलिंग बहुत ही बेकार लगती है। मतलब आई डोंट लाइक ऐसे उल्टी वाला थिंग। ये वो कोई लोग होते हैं कि ना हाँ चलो उंगली डाल के कर लो उल्टी, ये वो यू फील बेटर ये वो, बट आफ्टर प्यूकिंग आई फील लाइक मोर अनईजी एंड वीकनेस काइंड ऑफ, तो मुझे नहीं पसंद। सो टच वुड मेरे को उल्टी तो नहीं हुई एंड एवरीथिंग वॉज स्मूथ ओनली एक्सेप्ट ऑल दीज छोटे चीज़ें इन एवरी सेक्टर। वरना फ्लाइट वॉज अमेजिंग, द क्रू वॉज अमेजिंग। So that was it guys, this was the first time I've shared a story on my YouTube channel. So basically my first story time video. Thank you so much for watching this video guys. Subscribe to my channel if you haven't. Give this video a big thumbs up and share it as much as you can. And also follow me on my Instagram if you are not following me yet. And let me know आगे आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी है, what videos, interesting topics you have that I can post on my YouTube channel. Comment all those in the comments below and I reply to each and every comment guys. So see you until next time, bye bye.